ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಆಯ್ತಂತ. ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಮಗು ಎಂಟಿ ಮುಂಚೆನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ರಂತ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತಂತ. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार बने भारत भूषण की सास ने आपबीती बताई। बेंगलुरु के टेक्निकल एक्सपर्ट भारत भूषण उन 26 लोगों में शामिल थे जिनकी जान पहलगाम आतंकी हमले में चली गई। कर्नाटक के मंजुनाथ राव भी पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार बन गए। मंजुनाथ अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे अभिजय के साथ घूमने गए थे। मंजुनाथ की हत्या से पूरा परिवार काफी सदमे में है। 4:15 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ, ಈಗ ಹಾಲಿಡೇಸು ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ರಜಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೂ ರಜಾ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೂ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಫಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. कर्नाटक के मंत्री मधु बंगरप्पा ने मंजुनाथ राव के आवास पर जाकर संवेदना जताई और कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटकों की सहायता के लिए 2 टीम भेज दी हैं। मंत्री संतोष लाड भी टीम के साथ जम्मू कश्मीर गए हैं। Our minister has already reached them. I have spoken to them in the morning. I spoke to Mrs. Pallavi also to get his body back, and then whatever formalities have to be done. So our government is taking care fully as far as them coming back to India, back to Bangalore very safely. So already, and I've spoken to Santosh and Pallavi also. Our Honorable Chief Minister has directed, because there will be a lot of tension there, so we can't depend only there. So that's the reason they have already deputed our minister also. Usually Santosh Lad usually goes there. विशाखापत्तनम के सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी JS चंद्रमौली भी पहलगाम में हुए आतंकवादियों का शिकार बन गए। मूल रूप से श्रीकाकुलम के रहने वाले मौली विशाखापत्तनम में रहते थे। उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं जो अमेरिका में रहती हैं। मौली के पड़ोसियों ने बताया कि वे बहुत ही दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। I know Chandramouli for the last 3-4 years. He purchased the apartment and lived with his family. Every day, morning walk, he was opposite to me. He is very cordial, friendly. Recently, we performed Satyanarayana Vratam in our house. He came to my house with his family members, and it's very bad thing. The terrorist attack the tourists is very condemnable. The government of India should take the appropriate actions to eradicate this type of attacks on tourists. నాకు తెలియదు సార్. అనుకుంటే ఊరు వెళ్తాను అనుకున్నాండి, కానీ ఇలా జరుగుతుందని ఊహించలేదు సార్. చాలా ఘోరం. ఎవరో వెళ్ళారండి టూర్ ఎవరో వెళ్ళారు అక్కడికి? వాళ్ళ 2 పాపలు వాళ్ళు వెళ్ళేట్టుకున్నారు. లోపల కంటే చెప్పుకోం కదండి, కామ్గా వెళ్తే తిరుపతి ఎక్కడికక్కడ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. సమ్మర్ కదండి. ఫోన్ చేశారండి, ఇప్పుడు వస్తున్నారా? రిటైర్ అయిపోయారు కదా, నేను రిటైర్ అయిపోయాను. SBI నేను SBI అతను SBI. जयपुर में नीरज उधवानी के घर पर भी मातम पसरा हुआ है। नीरज दुबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए नीरज को आतंकियों ने मार डाला। नीरज के घर वालों ने आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। उनके साथ जिन्होंने किया उनके साथ तो होना चाहिए कड़ी कार्रवाई। उनको भी ऐसी बंदूकों से मारना चाहिए, गोलियों से। पीछे हैं उनके खिलाफ, हाँ, उनके खिलाफ भी करना चाहिए, जो क्योंकि ये लोग भी क्या है, लोगों के कहने पे, पैसे के बल पे, लालच में क्या कैसे काम करते हैं, तो वो तो उन पे कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां बंद हो। हालांकि मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, पर फिर भी ये अगर हुई है तो ये बहुत गलत है और इनको फांसी देनी चाहिए। प्लस इसके पीछे के जो लोग हैं उन तक पहुंच के
आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए ठाणे के 3 निवासियों के दोस्त और करीबी सदमे में हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली शहर के अलग अलग इलाकों से आने वाले हेमंत जोशी, संजय लेले और अतुल मोने की आतंकियों ने हत्या कर दी। हमने टीवी पे देखा था तो हमको पता था कि ये पहलगाम में गए, तो उनसे वो 6:30 बजे बात हुआ तो टाइम पे ओके था सब। उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमको शिफ्ट किया गया है, सब आर्मी हमारे साथ में है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन 8 बजे यहाँ पे हमने देखा कि नाम के साथ में और फोटो के साथ में जब आया तो हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं अतुल अभी नहीं रहे करके। वहाँ पे कंट्रोल रूम था, वहाँ पे कॉल किया तो उन्होंने सब लिस्ट भी बताया हमको, तो क्लियर हो गया। और सुबह जो यहाँ के स्थानिक आमदार है उन्होंने वो जाने का व्यवस्था किया। अतुल मोने के भाई और इनके भाई वो दोनों सब तीनों के तीनों यहाँ से 7 बजे का फ्लाइट है वो पकड़ के वहाँ पे गए हैं। कल तो बात नहीं हो पा रही थी। कल शाम को मेरी जो नीस है उसके साथ मेरा बात हुआ तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ है, तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे ही नाम के साथ आने लगा तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके अब पता चला तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननन जो है उनके हस्बैंड भी थे, तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। जैसे ही आतंकी हमले में इन तीनों की मौत की खबर आई, डोंबिवली में गहरा शोक छा गया। अपनों को खोने से लोग बेहद दुखी नजर आए। जब भी हमको मैं आया तभी मुझे पता चला, उनका फ्रेंड आया कि वो ऐसा ऐसा हो गया, तो उनका नाम नहीं था करके हम लोग बोले ये सेफ है करके। तो लेकिन जब भी उसने फ्रेंड ने बताया कि ऐसा ऐसा है तो मैं बोला हम सभी लोग पुलिस स्टेशन में जाके पूछेंगे उसको कि बाबा क्या है। तो रास्ते में हमको पुलिस का वैन मिला तो हम पूछे उसको, तो वो ही ढूंढ रहे थे कि वो किधर रहते हैं करके। तो उसने फिर हमको लिस्ट बताया कि हमको लिस्ट बताओ कौन कौन लोग हैं, तो उसमें से हेमंत का भी नाम था। तो हमको बहुत शौक लग गया उसके बारे में। और बाद में फिर मैं पीसीआर को कॉल किया, वो जम्मू कश्मीर का, उसने भी उनका नाम बताया कि इज डेड। उसके फैमिली में उसका मिसेस है मोनिका जोशी करके और उनका लड़का ध्रुव जोशी करके, और उनका पिताजी जो है वो उसमें वृद्धाश्रम में है। वो इस बिल्डिंग के सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, तो सेक्रेटरी होने के वजह से हमारी मीटिंग में इंटरेक्शन होता था और सोसाइटी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं तो काम करने के लिए हमको जब बाहर जाना है किधर, तो मोस्टली मैं, हेमंत और मैं हम लोग खूब बाहर जाते थे करने के लिए सोसाइटी से काम से रिलेटेड। बहुत ही अच्छे व्यक्ति, सोसाइटी में हर किसी को साथ में लेके चलना है। और कल जब ये खबर आई कि वो उनका लिस्ट में नाम है, वो डेथ है, तो हमारे लिए ये अविश्वसनीय है कि ये ऐसा नहीं हो सकता। इतना पहलगांव में कल जहाँ वहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग टूरिस्ट रहे होंगे, उसमें से 20 लोग जो गए हैं तो 20 में हमारा भी नेबर होगा, ये हमारे लिए बहुत ही अविश्वसनीय बात है। उसके बीच कुछ बातचीत नहीं हुई और कल जो हमने उनको व्हाट्सएप किया, मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं मिला और कॉल को भी आंसर नहीं मिला। नहीं, उसने भी रिप्लाई नहीं किया है। जब भी हमने 5:30-6 बजे टीवी लगाया तो हमें पता चला कि पहलगाम पे अटैक हुआ है, तो हमने उसके साथ कांटेक्ट करने का प्रयत्न किया, ट्राई किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसके लिए हमने मोनिका के भाई के साथ फ़ोन किया तो वो बोला कि ध्रुव का फ़ोन आया था और ध्रुव बोला हम लोग सेफ है। नहीं, हेमंत जी के साथ कुछ बात नहीं हुआ हमारा। कोलकाता के रहने वाले केंद्रीय कर्मचारी समीर गुहा उन 3 मृतकों में शामिल हैं जो पश्चिम बंगाल से थे। वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। वो मेरी दीदी है, दीदी और मेरा जीजाजी है और मेरी भांजी भी वहाँ पे है। एक्चुअली जो इंसिडेंट कल जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, तो वहाँ पे मेरा जीजाजी एक विक्टिम हो गया है, उनका डेथ हो गया है। अभी क्या खबर आ रहा है? अभी ऐसा कुछ लास्ट अपडेट अभी तक कुछ नहीं आया है, शायद आज ही आ जाएंगे, शाम तक वो लोग पहुँच जाएंगे यहाँ।
जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।